بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ما كما صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. رب يسر ربي رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تؤسر وتمم بالخير وتم بالخير بالخير. وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح. يا يا فتاح. رب زدني علما رب رب زدني علما. رب زدني علما رب رب زدني علما. رب زدني علما. رب رب زدني علما. لاسٹ کلاسز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون کون سے قاعدے جانے تھے بتائیے؟ اپنی تختی نمبر 14 پڑھی تھی، را ساکینہ اور را مشدد، اور تختی نمبر 15 حروف قمری اور حروف شمسی. شمس اور اب بھی 16 بھی پڑھ لی تھی. لفظ اللہ کے لفظ قاعدے. اللہ. لفظ ہاں، اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کا قاعدہ. جی، رائے ساکینہ کسے کہتے ہیں؟ جزم والی جزم را والی جزم والی را کو را والی را ساکینہ کو را کہتے ہیں، ساکینہ کہتے ہیں. اور تشدید والی را کو را مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سبھی کو پتہ ہے. جی. جی. کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو اس قاعدے میں تو پوچھ لیجیے. نہیں، اپنی اچھے سے آ رہا ہے سمجھ میں. اس کے بعد ہے تشدید، ہے نا؟ تشدید والے حروف کا کیا قاعدہ ہے؟ تشدید والی حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، سختی سے پڑھتے ہیں. نہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے. تشدید وہ والے حروف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حروف سے ملا کر اور ایک بار خود اسی حروف سے. جی اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. سختی ہوتی ہے. تشدید والے حروفوں کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. جی. ہے نا؟ اور نون اور میم پر تشدید ہو تو وہاں ہم غنہ کرتے ہیں. جی. اس لیے ان دونوں حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف غنہ. حروف غنہ. حروف غنہ 2 ہیں. را پر بھی تشدید ہو تو لیکن حروف مشدد 3 ہیں اور حروف غنہ 2 ہیں. دو. نون پر تشدید ہوگی تو غنہ کریں گے اور میم پر تشدید ہوگی تو غنہ کریں گے. غنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتایا تھا سبھی کو. ہمیں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، تھوڑی سی دیر آواز کو روکنا، چھپانا. ہاں، ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روک کر پڑھتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں. بولنا کہتے جی. ہیں.
آج اتنے کم اسٹوڈینٹ جوائن ہوئے، آج کا کلاس کا یاد نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو، باقی سب کو؟ ابھی پتہ نہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 17۔ جی ہم 1 منٹ رک جائیں، اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں، باقی سب کو میسج کر دیں، سب جوائن کر لیں تو پھر صحیح رہے گا نیا جی سبق پڑھنے میں۔ جی جی اپی۔ جی جی، حروف قمری اور حروف شمسی بھی پڑھا تھا ہم نے، حروف قمری اور حروف شمسی یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی اپی۔ کتنے حروف قمری اور حروف شمسی، کتنے حروف ہیں اس میں؟ 14 ہیں اپی، حروف قمری میں بھی اور حروف شمسی میں بھی۔ جی، حروف قمری اگر ہم حروف قمری یاد کر لیں، پکی حروف قمری میں کون کون سے حروف آ رہے ہیں، 14 حروف جو ہیں، تو باقی جی کے جو بچیں گے وہ سب حروف شمسی کے ہیں۔ شمسی میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو سمجھنے کا ایک اور آسان طریقہ میں نے بتایا تھا، وہ کسی کو یاد ہے؟ کہ اگر حروف قمری اور شمسی یاد نہ ہو تو ہم یہ چیز دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر قمری کا قاعدہ لگ رہا ہے یا شمسی کا۔ جی اپی، آپ اس پر جزم ہو تو ہے نا قمری کا لگے گا، اور تشدید ہوگی تو ہے نا شمسی کا لگے گا۔ جی، اگر الف لام کے بعد اگر جزم آ رہی ہے تو وہ قمری کا قاعدہ ہے، یعنی وہاں پر قمری کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور جی جب تشدید آ رہی ہے تو وہاں پر شمسی کا لگ رہا ہے۔ شمسی کا فائدہ لگ رہا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے پہچاننے کا، اگر حروف شمسی اور قمری یاد نہیں ہو تو اب ہم ایسے بھی۔ اپی ہمیں تو اسی طریقے سے سمجھ میں آیا ہے، جزم اور تشدید کا ہی، نہیں تو ہمارے تھوڑا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر آپ نے بتایا تو ہمیں اس طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ جی، یہ آسان طریقہ ہے، تھوڑا میں نے بھی ایسے ہی جی سمجھا تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا جی دیا۔ جی اپی۔ بس ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، قاعدہ ہے نا، جی ہم جی آسان اپی۔ سے آ آسان رہا ہے طریقے میں تو سمجھنے کی حروف کوشش۔ قمری لگے گا۔ جی جزم آ رہا ہے تو حروف قمری ہوگا۔ جی، اور تشدید آ رہی ہے تو حروف شمسی ہوگا۔ شمسی۔ جی دیکھیے اب اس میں دیکھیے نا، قمری والے جتنے بھی حروف ہیں ان سب پر جزم لگی ہے، جزم والقمری لگی میں ہے۔ لام پر لگی ہے، والیتامى میں بھی لام پر ہے، والاقربین میں بھی لام پر ہے، اسی طرح جی حروف شمسی میں شین پر ہے تشدید، کان الناس میں نون پر ہے، نون یقول پر ہے، الرسول میں را پر ہے، اقیم الصلاۃ میں صاد پر ہے۔ بات پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے آسانی کے لیے بتا رہی ہوں میں،
ऐसा कायदे में नहीं लिखा है। बाकी तो हमें हुरूफ कमरी और शमसी याद ही करना है ना, याद भी कर लें उसे। और जी जी एकदम से अगर आपको समझ में नहीं आए कि यहाँ पर कमरी हो रहा है या शमसी, आपको हुरूफ अगर जहन में ना आए आपके, तो आप इस तरह से भी पहचान सकती हैं। जी ठीक है, दोनों ही तरीके बता दिए गए हैं। जी बस ये कि हमें कायदा सही बताना पता होना चाहिए और बताना भी सही आना चाहिए, जी और उसकी अदायगी भी दुरुस्त होना चाहिए। जी सना साहिबा, लफ्ज अल्लाह का कायदा एक बार और बता दिए। जी, लफ्ज अल्लाह का कायदा देखिए, आप लोग बता तो सही रहे हैं, आप लोगों ने जिसने होमवर्क भेजा है, लेकिन आप लोग को बताने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है। अगर इस तरीके से आप बताएंगी ना एग्जाम में, तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। लफ्ज अल्लाह को हम बारीक या मोटा नहीं पढ़ते, लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक या मोटा पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे कि कोई सूरा में से पूछ लिया गया, वहाँ पर लफ्ज अल्लाह आया, तो आपसे पूछें क्या वहाँ पर, बताइए यहाँ पर लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे या बारीक। तो आप देखेंगे कि अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज अल्लाह से पहले अगर पिछले वाले उर्फ पर जबर या पेश आ रहा है, तो हम लफ्ज अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, यानी पुर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जबर और लफ्ज पेश अल्लाह हो। के लाम पिछले वाले उर्फ के नीचे अगर जेर आ रहा है, तो फिर वहाँ हम लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो भी बारीक पढ़ा जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह मीम के नीचे जेर आया है। ठीक है। जी जी बिस्मिल्लाह, लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बारीक पढ़े जाते हैं। इसमें लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ते हैं। जी ठीक है, लिल्लाह में भी लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह में भी लफ्ज अल्लाह के लाम को, सॉरी, लफ्ज बारीक। अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। जी ठीक है, इसी तरह बताना है आप लोगों को भी एग्जाम में भी, टेस्ट में जब आलिम साहब आपका एग्जाम लें, तो ये लफ्ज अल्लाह के जी लाम को हम बारीक पढ़ते हैं या पुर पढ़ते हैं। जी लफ्ज अल्लाह के लाम को है ना, लफ्ज अल्लाह को नहीं जी बोलेंगे। जी जी अब भी हमने होमवर्क में यही लिखा था, लफ्ज अल्लाह के लाम। जी जी। उसके बाद है आज आपका सबक, तख्ती नंबर 17। तख्ती नंबर 17 है वक्फ करने के कायदे। वक्फ किसे कहते हैं, किसी को पता है? अभी ठहरना। अभी जी। जो आयतें आती हैं ना, कि तैरना जो। उसमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ आयत करना है। जी जी। वक्फ के मायने होते हैं ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कहाँ, पढ़ते रुकना। पढ़ते किस तरह ठहरे। यानी ठहरना यानी स्टॉप करना है ना, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह स्टॉप करना है। जी ऐसे गोल निशान को आयत कहती हूँ। ऊपर देखिए जो लिखी है ना उर्दू में, जो डेफिनेशन जी लिखी है वही पढ़ रही हूँ मैं। जी जी अपी। सब स्क्रीन पर देखिए। जी जी वक्फ के मायने है ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये जो आते हैं ना कुरान आयत मुकम्मल होती है तो ऐसा गोल निशान आता है, इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत। ये जी गोल निशान है ना, इसे आयत कहते हैं। जी जी ये जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हुरूफ पर जज्म देकर सांस तोड़ें, उसको वक्फ करना कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ रही हूँ, जबर जेर और पेश, जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश। यहाँ पर दो जबर की बात नहीं हुई, दो जेर और दो पेश की बात हो रही है ना। दो जी जेर और दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ें। जज्म समझते हैं सभी, किसे कहते हैं, छोटी सी जो दाल, जी जी ये अपी। जज्म है। छोटी सी जी दाल। जी जब हमें दो दो जेर और दो पेश पर वक्फ करना होगा तो हम क्या करेंगे, आखिरी हुरूफ पर ऐसे जज्म देकर, तोड़ यानी देंगे। आखिरी हुरूफ को हम साकिन करके वहां पर सांस तोड़ देंगे।
जी जी अभी जैसे ये लास्ट में ये अल्फाज लिखा है जो आइनन, अनिया, जी जी, एक मिनट। अनिया। दूसरा पॉइंट है, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। जी अहदन लिखा है, यहाँ से अहदन से जी अहदा पढ़ेंगे अगर हमें ये दो जबर वाले हुरूफ पर वक्फ करना हो तो। जी अहदन लिखा था हमने, जब यहाँ पर रुक रहे हैं, हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? अहदन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अहदा। अहदा। एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, एक जबर खत्म हो जाएगा। अहदन। ठीक है। तीसरा जी पॉइंट है, गोल ता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। ये जो गोल ता जी होती है, छोटी सी जो ता होती है, जी जी ये वाली ता, ये जी देखिए, ये बनाई है मैंने स्क्रीन पर कि गोल ता, जी जी ये होती है गोल ता। इस पर वक्फ करना हो तो हमें ये क्या बन जाएगी? ये हाय साकिना बन जाएगी, नहीं हाँ छोटी वाली सर। हा बन जाएगी। जी ये जो उसके ऊपर के जो नुक्ते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, तो ये बन जाती जी है हाय साकिना, यानी छोटी वाली हा, गोल हा बन जाती है, ये जी बन जाती है, ये बन जाती है गोल हा, इसे बोलते हैं जी हाय साकिना। ठीक है। जी 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 गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन लिखा था, जारियतुन से क्या पढ़ेंगे फिर हम? जारिया। जारिया जारियतुन से जारिया जारिया। जारिया। ठीक है। देखिए, जारियतुन में जो पहला वाला जारियतुन है, उस पे क्या है? ता दो पेश तुन। तुम दो पेश इसका की तलफ्फुज़ तनवीन। क्या होगा? जारियतुन, ता दो पेश तुन, तुम जारियतुन। लेकिन अब हमें यहाँ पर रुकना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, अब हमें यहाँ पर रुकना है, स्टॉप करना है, वक्फ करना है, तो फिर हम पढ़ेंगे जारिया। जारिया। दिया। यानी जो दो पेज थे वो खत्म हो गए, जी खाली और छोटी सर हा साहब बची। अगर नहीं रुकते हैं, सीधे पढ़ रहे हैं, मतलब सांस नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब तो कि मतलब तो सांस तोड़ना जारियतुन ही है। पढ़ेंगे। अच्छा ओके। जी। जब हम रुकते हैं तो हमें आखिरी हुरूफ पर, जैसे कि जारियतुन का जो आखिरी हुरूफ है वो क्या है? ता है, गोल ता है ना, छोटी जी 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 ये ता है ये। तो इस पे जो दो दो पेज थे, दो पेज की जो तनवीन थी, वो हमने खत्म करके क्या कर दिया? वहां पर उसको साकिन कर दिया, जी जी साकिन कर दिया, जारिया। है ना, ये थी, जी साकिन कर दिया। पहले इस पे क्या थे? दो पेज थे, दो दो पेज पेश को की खत्म तनवीन। करके उसको साकिन करके वहां पर हमने सांस तोड़ दी। सांस तोड़नी उसी वक्त कहते हैं, रुकना, सांस तोड़ना, जज्म देकर जो सांस तोड़ना है वही वक्त है। ठीक है। आवाज आ रही है? जी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे ना, जब इसमें तो समझ में आएगा। मैं फिर से पढ़ रही हूँ ऊपर की डेफिनेशन, फिर से सुन लीजिए गौर से सभी। वक्फ के मायने हैं ठहरना। क्या मायने हैं वक्फ के? अपनी नोट कर लीजिए। ठहरना। ये जो लिखा है ना ऊपर, वही बोल रही हूँ मैं, आप लोग अभी सुन लीजिए, बाकी आप बाद में नोट कर सकती हैं इसमें से देखकर। अभी सुनने में ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिखने में नहीं आएगा। वक्फ के मायने हैं ठहरना। 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 ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। जी जी ऐसे गोल निशान को क्या कहते हैं? आयत आयत के। कहते हैं। आयत कहते हैं। ये जो गोल निशान आती है ना, आयत पूरी मुकम्मल होने के बाद ये जो गोल निशान बना है, इसे हम आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। ठीक है। ये है आयत, जी गोल निशान। जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश दो पर पेश। वक्फ करना हो तो आखिरी हुरूफ पर जज्म देकर सांस तोड़ें, इसे वक्फ करना वक्त। कहते हैं। दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। दाल दो जबर दन था, दाल पे दो जबर की तनवीन थी, उसमें से एक जबर खत्म करके एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, अहदन से अहदा। आदम से ठीक है। आहार। जी तीसरा पॉइंट है, गोल ता पर वक्फ करना हो तो वह हाई साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। हाई साकिना यानी वो छोटी हा बन जाएगी। जी ठीक है। जी
पहली वाली आयत पढ़ रहे हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब देखिएगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पूरी एक आयत हो गई। आयत कंप्लीट होने के बाद ये गोल निशान आ गया, इसे आयत कहते हैं, है ना। जी यहाँ पर ये आयत कंप्लीट हो गई। अब ये रजीमी लिखा है, वैसे तो पढ़ेंगे हम रा जबर रा, जीम ये जेर जी और मीम जेर मी, रजीमी। लेकिन अब हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वक्फ जी। कर रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? कोई बताइए रजीम। क्या पढ़ेंगे हमें? रजीम पढ़ेंगे। रजीम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे रजीम? क्योंकि आयत आ गई है। फिर आयत आ गई है। आयत आ गई है, पढ़ेंगे तो। आखिरी हुरूफ पर हमने सांस तोड़ जज्म देकर सांस तोड़ दी यहाँ पर, तो जो अम्मा जबर हाफिज साहब ने कॉल नहीं उठाया। आवाज आ रही है? जी आ जी रही है। अपनी बारी। रजीमी लिखा था, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो फिर हम रजीमी नहीं पढ़ेंगे, मीम के नीचे जो जेर है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे रजीम। रजीम। जी ठीक है। जी इसी तरह दूसरी वाले आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, मीम जेर मी, जी रहीमी है। यहाँ पर भी अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो मीम के जी नीचे जो जेर है वो खत्म हो जाएगा, मीम मीम पर जजम देकर सांस तोड़ देंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जब हम सांस तोड़ेंगे यानी रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तभी हम ऐसा करेंगे, जबर जेर पेश खत्म करेंगे। और अगर अगर नहीं रुक रहे हैं हम, अगर नहीं रुक रहे हैं तो फिर हम वो जबर जेर पेश को भी पढ़ेंगे मिलाकर, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अगर रुकेंगे तो ही जबर जेर पेश खत्म होगा, और अगर नहीं रुकेंगे तो उस जबर जेर पेश को पढ़ेंगे। समझ में आया? जी के बाद देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हम रुक गए, आलमीना लिखा है, रुक गए हम यहाँ पर, तो जो जबर था वो खत्म हो जाएगा, तो आलमीना से आलमीन हो जाएगा वो। ठीक है। अगर रुक रहे हैं, और अगर नहीं रुक रहे हैं तो फिर हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल ना आलमीन, सना साहिबा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी सना साहिबा आप है ना, इनको कल के बारे में अनाउंस कर दीजिएगा, है ना, मस्जिद का बता दीजिएगा थोड़ा। ठीक है जी जी है ना। और मैं जरा सा लीव कर रही हूँ, मुझे थोड़ा जी डॉक्टर के जी पास। ठीक है। ठीक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून जबर ना, आलमीना लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आयत कर रहे हैं, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? आलमीन। नून पर जो जबर है वो खत्म हो जाएगा। जी ठीक। जी फिर आगे देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन, नून पर क्या है? पेश है। नस्तईनु लिखा है, रुक रहे हैं हम यहाँ पर, तो पेश खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे नस्तईन। अभी मैं सिर्फ आप लोग को समझा रही हूँ, अभी आप लोग को मेरे साथ साथ दोहराना है उसे, अभी सिर्फ समझ लीजिए पहले। जी उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहदुन, अहदुन डाल दो पेश दुन। ठीक है, दो पेश की तनवीन आ गई। अब हम यहाँ पर रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दो पेश की तनवीन जो है वो खत्म हो जाएगी, क्या पढ़ेंगे? अहद। अहदुन से अहद। 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 कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना मअल उसरी युस्रा। युस्रा इसलिए पढ़ा क्योंकि हम रुक गए, अगर नहीं रुकते तो फिर हम पढ़ते इन्ना मअल उसरी युस्रन फीहा आइनुन जारिया। आइनुन जारिया इस तरह पढ़ेंगे। जी इन्ना मअल उसरी युस्रन, रा अलिफ दो जबर रन, युस्रन। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर बताया गया था, अहदन से अहदा पढ़ा जाएगा। अब इसी तरह देखिए, युसरन से युसरा पढ़ा जाएगा।
کیوں؟ جی کیونکہ دو زبر کی تنوین تھی، تنوین ہے. را پر دو زبر کی تنوین ہے، تو ایک زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایک زبر پڑھا جائے گا الف کے ساتھ. یسرن سے کیا پڑھا جائے گا؟ یسرا. یسرا. ان مع العسر یسرا. اگر رکیں گے تب، اور اگر نہیں رک رہے ہیں تو پھر یسرن ہی پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. جی. جی. اس کے بعد دیکھیے فیہا عین جاریہ. فیہا عین جاریہ. جاریہ، جاریہ میں کیا ہے؟ جاریتن ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا وہی آئے. دیکھیے نیچے گول تا پر وقف کرنا ہو تو دو پیش ختم ہو جائیں گی، اور گول تا کیا بن جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی چھوٹی ہا بن جاتی ہے. جاریتن لکھا ہے، ہم کیا پڑھیں گے اسے؟ جاریہ. جاریہ. ٹھیک ہے. جی. جی. اور اگر نہیں رکیں گے، وقف نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم اسے جاریتن ہی پڑھیں گے. جاریہ. جیسے فیہا عین جاریتن، اس طرح. جی. آگے کا دیکھیے تسقا من عین آنیۃ. تا دو زیر تن. تسقا من عین آنیۃ. تا دو زیر تن. یہاں پر دو زیر کی تنوین آ گئی. اب ہمیں یہ یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو یہ جو دو زیر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو یہ گولتا تھی وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. جیسے تسقا من عین آنیہ. یا ہا زبر یا. جی. جو گولتا تھی وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے وقف کرنے پر. جی. اور اگر وقف نہیں کر رہے ہیں تو وہ گول تا ہی رہے گی، تا ہی پڑھیں گے پھر اسے. پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ عین آنیۃ. تا دو زیر تن. ٹھیک ہے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. لاغیتن لکھا ہے، لاغیت سوری لاغیتن لکھا ہے، تا دو زبر تن. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. رک رہے ہیں تو لاغیہ پڑھیں گے، اور اگر نہیں رک رہے ہیں تو لاغیتن پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ مطلب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہاں یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں، لیکن ہمیں آیت کس طرح کرنا ہے وہ قاعدہ ہمیں نہیں پتہ، تو وہ قاعدہ ہمیں اب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ جب ہم یہ تختی نمبر پڑھیں گے وقف کرنے کے قاعدے، کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹہرنا ہے، کس طرح نہیں، ہے نا. علامتیں بھی آئیں گی ابھی آگے آپ کو، کہ کس علامت پہ آپ کو ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے اور کہاں پر ٹھہرنا لازمی ہے، سب بھی آگے کی تختیوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آیا سبھی کے؟ جی. جی الحمدللہ. اب میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مائک ڈسٹرب کر رہے ہیں نا، وہ مائک بند کر کے پڑھ لیجیے. انڈیس کر دیجیے کہ آپ پڑھ رہی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ پڑھ رہی ہیں. کیونکہ نا تھوڑا سا آپ کی آواز بہت لوٹ سا واپس آ رہی ہے، وائبریشن سا ہو رہا ہے. جی. آپ مائک بند کر کے پڑھ لیجیے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نا میم زیر میں، یہاں پر ہم رک گئے رجیم، تو پھر ہم جو میم کے نیچے وہ جو زیر ہے اسے ہم ختم کر دیں گے نا، وہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب کے سمجھ میں آیا؟ جی. تو زیر کو اگلے والے حروف سے ملا دیں گے، جی. یعنی زیر بھی پڑھا جائے گا، نہیں رکیں گے تب، اور اگر رک رہے ہیں تو زیر ختم ہو جائے گا. جی. آگے بڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم پر بھی ہم نے وقف کیا، یہاں پر ہم رکے اس لیے میم کے نیچے جو زیر تھا وہ ختم ہو گیا. جی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. عالمین پر ہم نے وقف کیا،
جی جی عالمین پڑھا. اب جی ہم جی وقف نہیں کرتے, ہم ملا کر پڑھیں گے. جی الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد للہ الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. قل آپ هو اللہ احد. آپ کی مائک ڈسٹرب کر رہا ہے, آواز صحیح نہیں آ رہی. احد. مائک کسی اور کا ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ یہ روبینہ خان ہے نا, ان کا ہو رہا ہے مائک ڈسٹرب. جی تھوڑا سا دھیان رکھیے, جس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے وہ مائک بند کر کے پڑھ لیجیے. قل هو اللہ احد. قل قل هو هو الله أحد. احد ان سے کیا پڑھیں گے ہم, رک رہے ہیں یہاں پر تو احد. احد پڑھیں گے نا. دو جی پیش کی جو تنوین تھی وہ ختم ہو جائے گی. جی قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ میں جو لفظ اللہ آ رہا ہے تو اسے ہم کیسا پڑھیں گے؟ اور موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے, کیونکہ کیونکہ لفظ اللہ کے لام زبر آ رہا ہے. پیش سے. زبر آ رہا ہے. جی لفظ اپی اللہ پیش کے سے نام سے پچھلے والے حروف پر زبر آ رہا ہے, اس لیے ہم لفظ اللہ کے نام کو موٹا موٹا پڑے. پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. قل هو قل هو الله الله أحد. ان مع العسر یسرا. إن إن مع سورہ العسر يسرا. مل نہیں پڑھیں گے, میم عین اور لام, عین کی ادائیگی بھی کریے. ان مع العسر یسرا. إن إن مع العسر يسرا. فيها عين جارية. فيها فيها عين جارية. عین پہ دیکھیے, عین یا زبر آئی اور نون دو پیش نون اور عين. دو پیش کی تنوین ہے, اس کے بعد جیم آیا ہے, تو یہاں پر کیا اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا؟ اظہار ہوگا. إظهار. صحیح سے دیکھیے. أبي عين عين. اخوا ہوگا. إخفاء. اخفا ہوگا نا, کیونکہ اظہار تو تب ہوتا ہے جب حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی حروف آتا ہے. یہاں پر تو جو جیم آ رہا ہے وہ حروف اخفا کا حروف ہے, جی 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 اس لیے أبي یہاں پر قلقلة اخفا والا. نہیں, اخفا ہوگا, اظہار نہیں ہوگا. جی دو پیش کی تنوین کے بعد جیم آیا ہے یہاں پر, تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے, یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جی. عین جاریہ. عين. عين جارية. فيها عين جاریۃ. فیہا فيها عين جارية. عین جاریۃ. عين جارية. اخفا کی پریکٹس کریے, اخفا والے جتنے بھی ورڈ ہیں ان کی پریکٹس کریے, خوب مشق کریے. آپ لوگ کا اخفا صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے, اخفا میں بھی اظہار ہو رہا ہے آپ کے. جی جی ٹھیک ہے. جی پہلے ہم نے پڑھا تھا جاریہ, تو ہم نے وقف کیا تھا. اب ہم نے وقف نہیں کیا, تو ہم نے کیا پڑھا, جاریتن. جی سمجھ میں آیا سبھی کے؟ جی جی. آگے کا پڑھیے. تسقى من عین آنیۃ. تسقى من عين آنية. اب عین میں دیکھیے, عین یا زبر آئی اور نون دو زیر نین. اب یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ گیا, حروف حمزہ آ گیا, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا؟ اظہار. زیر کی تنوین. اظہار کیوں ہوگا؟ جی بتائیے, اظہار کیوں ہوگا؟ بتائیے جلدی. کیونکہ حمزہ آ رہا ہے. جی صحیح بتا رہی ہیں ماشاء اللہ, پھر گھبرا کیوں رہی ہیں بتانے میں. حمزہ کھڑے زبر آ رہا ہے. جی کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد
حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی کا، حروف اظہار کا حروف ہے، اس لیے یہاں پر ہم دو جگہ کی تنوین یعنی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تسقى من عين آنية. تسقى تسقى عين من آنية. آنية. آنیتن اس لیے پڑھ رہے ہیں، اگر رکیں گے نہیں تو آنیتن پڑھیں گے، اور اگر رک رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے عین آنیہ. عين آنية. ٹھیک ہے. جی. لا تسمعوا فيها لاغية. لا لا تسمع فيها فيها لاغية. لاغیتن کیوں پڑھا؟ کیونکہ دو زبر کی تنوین ہے. زبر کی اگر تنوین نہیں ہے. رکیں گے تو لاغیتن پڑھیں گے، جی. جی. اور اگر رکیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ لا لاغية. لا یا دو زبر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو بولتا ہے وہ ہائے ساکینہ بن جائے گی، تو لاغیتن سے لاغیہ پڑھیں گے پھر. یہ پڑھیں گے. جی. ٹھیک ہے. جی. جی. لاغیہ. لاغیہ. لا تسمع فيها لاغية. لا لا تسمعوا فيها لاغية. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سبھی کے؟ جی آ جی گئے. جی اپی الحمدللہ آ گئے. دیکھیے کل جو جلسہ ہے نا مسجد پیر صاحب میں، خواتین کے لیے، لیڈیزوں کے لیے، بچیوں کے لیے، سبھی ماں بہنوں کے لیے، تو وہاں پر ہم لوگ کو بھی جانا ہے. تو جو آپ کی کل کی تھرسڈے والی کلاس ہے تو وہ کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ ٹائم پہ مسجد میں ہوں گے. انہوں نے بات کہی ہے ابھی جی کو بات یہ ہے نا. جادلون في تو ہم آئیے آيات بتائیں. الله یسرا خان. بغير خان کا سلطان. تھوڑا مائک کا خیال رکھیے. ابھی ایک بار تو ریپیٹ کر دیا، آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. کل جی کلاس نہیں ہے. کل جو جلسہ ہے نا مسجد پیر صاحب میں، جی 30 تاریخ کا جو جلسہ ہے مسجد پیر صاحب میں 11:30 بجے سے جو اسٹارٹ ہوگا، علماء جی حضرات بیان فرمائیں گے، تو وہاں پر جائیں گے سبھی. آپ لوگ بھی آئیے گا ضرور، اپنے ساتھ اور ماں بہنوں کو بھی لے کر آئیے گا. جی جی اپی ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کلاس کے ٹائم پہ وہاں پر ہوں گے مسجد میں. اس کی کل کی کلاس میں جو ہم پڑھانے والے تھے وہ ہم آج ہی پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی تو کل کی آپ کی چھٹی رہے گی پھر. جی اپی. اچھا. ٹھیک ہے، جو ہم کل پڑھیں گے سبق وہ ہم آج ہی پڑھا دیتے ہیں والا سبق. جی تو آج آپ لوگ کا یہ ہو گیا ایک سبق، تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے. کے بعد یہ تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید. اچھا یہ سب کے سمجھ میں آیا وقف کرنے کے قاعدے؟ جی آ گئے. جی اپی. جی اپی. تختی نمبر 18 دیکھیے، تشدید مع تشدید. تشدید کسے کہتے ہیں؟ جزم والی. اپی جزم والی نہیں، اپی جزم والی تو نہیں، وہی ڈبلو ون. بنی ڈبلو رہتی. جیسی جو ہوتی ہے. تشدید جی والے حروف کو 2 بار پڑھتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک جی بار پہلے والے حروف سے ملا کر اور ایک بار خود جی، سے. اور تشدید کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے چھوٹے سے ڈبلو کی طرح. ڈبل کی جی طرح. یہ تشدید. جی ٹھیک ہے. جی اب تشدید مع تشدید، مع یعنی ساتھ، جی ہے نا، مع یعنی ساتھ، وتھ. تشدید مع تشدید یعنی تشدید کے ساتھ تشدید، ڈبل تشدید. 2 بار تجدید. جی جی، 2 بار تشدید. یہاں پر جو کلمے لکھے ہیں، جتنے بھی ورڈ لکھے ہیں یہاں پر 5 6، ان سب میں کیا ہے؟ ڈبل تشدید آئی ہے، 2 بار آئی ہے تشدید، تشدید کے ساتھ تشدید. تو ہمیں دونوں تشدیدوں کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. جیسے کہ علیون، پہلے لام پر تشدید ہے، اس کے بعد یا پر بھی تشدید ہے، تو لام پر جو تشدید ہے اسے عین سے ملائیں گے. لام والا جو لام ہے
जो हरूफ लाम है उसे आइन से मिलाएंगे, फिर लाम को या से मिलाएंगे, फिर या को वाव से मिलाएंगे, यानी डबल सख्ती से अदा करेंगे हम। मैं मैं एक बार अदा कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा गौर से, फिर दोबारा आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी आ जी। रही है। इल्लियून, इल्लियून, इल्लियूना यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्का मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीन, इल्लियीन। ठीक है, इसी तरह पढ़ना है। पढ़िए अब मेरे जी। साथ। इल्लियून, इल्लियूना इल्लियूना यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का 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 नहीं पढ़ेंगे, जा ज़बर यज़, यज़्ज़क्का यज़्ज़क्का का, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु यज़, पढ़िए मेरे साथ, यज़, यज़्ज़क्करु यज़्ज़क्करु में दो बार पढ़िए, यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु जी, मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिल मुज़्ज़म्मिलु पहले मीम को जा से मिलाएंगे ना, फिर जा को मीम से मिलाएंगे, फिर मीम के नीचे जेर, फिर लाम पे पेश, इस तरह पढ़ेंगे। मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिल मुज़्ज़म्मिलु मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिर मुद्दस्सिरु मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिर मुद्दस्सिरु इल्लियीन, इल्लियीना इल्लियीन, इल्लियीना इल्लियीन। इल्लियीना ठीक है, तशदीद मा तशदीद, ये तशदीद के साथ तशदीद थी, यहाँ पर डबल तशदीद थी। इसके यही कितने कलमे हैं? 6 कलमे थे इसके, ये 6 वर्ड थे। ठीक है अभी जी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कॉपी में? इसमें लिखेंगे की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस तशदीद वाले हुरूफ को हम सख्ती से अदा करते हैं। यहाँ पर 2 बार तशदीद आई है तो हम 2 बार सख्ती से अदा करेंगे। ये लिख सकते हैं बस इतनी, फिर ये वर्ड लिख लेंगे। जी, जी ये वर्ड लिख लीजिए, चाहे तो आप आपकी नुरानी कायदा अगर आपके पास ना हो तो आप लिख लीजिए, और अगर है वैसे आप लिख लें तो फायदा ही होगा। और उसे बार बार आप क्या करेंगी? मश्क रिकॉर्ड करेंगे। करिए। जी, मश्क करके रिकॉर्ड करिए, फिर रिकॉर्ड करके पहले खुद सुनिए एक बार कि आपने डबल तशदीद अदा की है या नहीं। अगर की है तो सही है, और अगर नहीं की है तो उसे बार बार कोशिश करिए कि डबल तशदीद अदा हो। जी जी अभी हम तो फेयर कॉपी तो में लिख एक रहे हैं, एक ही बार नूरानी होती कायदा है। नहीं नहीं। जी, ग्रुप में डाल देंगे हम पीडीएफ पुराने कायदे की। वैसे तो जी डाली थी, एक बार वो सेंड कर देंगे हम। आप देख जी लीजिएगा, उसे खुद डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। जी ठीक है, 2 बार तशदीद है तो 2 बार सख्ती करेंगे, डबल तशदीद है ना तो 2 बार सख्ती से अदा करेंगे। इल्लियून, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु, मुज़्ज़म्मिलु, जी। मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु। मीम को दाल से मिलाएंगे, फिर दाल को सा से मिलाएंगे, फिर सा से सी रा पे शुरू, मुद्दस्सिरु। ठीक जी है, इल्लियीन। इल्लीना ठीक है, तख्ती नंबर 18 में बस यही है, तशदीद मा तशदीद। ये तशदीद डबल तशदीद वाले कुछ कलमे दिए हुए हैं, इसे हमें इनकी मश्क करना है बार बार, तो हमसे डबल तशदीद अदा अदा हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, समझ में आया ये वाला कायदा? जी अब भी आ गया। जी अभी आसान है या मुश्किल है? भी आसान है,
अगर अच्छे दो से ध्यान लगा के पढ़ेंगे चल तो भी जाए। आसान। जी, सिर्फ हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, मश्क करना है। जितनी जी मश्क अपी। करेंगे उतना ज्यादा आसान होता जाएगा, और जी। मश्क नहीं जी करेंगे तो अब मुश्किल लगेगा। इसलिए जी। मश्क करिए कंटिन्यू। जी अपी। समझ में आ ठीक है गया तो आसान है, नहीं आया तो मुश्किल है। जी। इसके बाद देखिए तख्ती नंबर 19। ये आपका तख्ती नंबर 19 जो है, ये कल का सबक था। कल हम छुट्टी रख रहे हैं, इसलिए हम कल का आज ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग का जी। नुकसान ना हो और हम जी लोग अपी। पीछे भी ना हो। जी। तख्ती नंबर 19 है मद का बयान। मद और मद्दा में फर्क है। मद हमने पिछली तख्ती में तख्ती नंबर 3 में पढ़ा था शायद। हाँ, तख्ती नंबर 3 है हुरूफ मद्दा, पढ़ा था ना। जी। जी जी। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। 3 तीन। है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा भाव मद्दा। और ये यहाँ पर बात हो रही है मद की। मद, मद। मद्दा हुरूफ अलग है और मद अलग है। मद्दा हुरूफ भी 3 है और मद भी 3 है। 3 है। ठीक है। एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ने को एक मद्दा कहते हैं। हुरूफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार ही खींचकर पढ़े जाते हैं ना। जी। जी अपी। और एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। एक अलिफ से ज्यादा खींचने को मत कहते हैं। जी। एक अलिफ के बराबर जो खींचकर पढ़े जाते हैं वो हुरूफ मद्दा होते हैं। पे मद्द होते हैं। ठीक है। एक अलिफ की मिकदार खींचकर जो पढ़े जाते हैं वो हुरूफ मद्दा होते हैं, और एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं, हुरूफ मद्दा। ठीक है। मद भी 3 है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा। देखिए पहला वाला पॉइंट, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी मद्दे वाजिब बमायने अहम होगा। दूसरा पॉइंट है, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल यानी मद्दे जायज होगा। तीसरा पॉइंट है, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। देखिए नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक अलिफ से जायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। जायद यानी ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा है ना। एक अलिफ से ज्यादा खींच कर पढ़ने को क्या कहते हैं? मद कहते हैं। मर्द कहते हैं। और एक अलिफ की मिकदार अगर हम खींच रहे हैं तो वो हुरूफ मद्दा है, और एक अलिफ से ज्यादा खींच रहे हैं तो वो मदे हैं। क्या करता है? है। मद। मत। मर्द। एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं, और एक अलिफ की मिकदार में जो खींचकर पढ़े जाते हैं वो हुरूफ मद्दा वो होते मत हैं। होता है। जी। जी अपी लिख लिया। ये ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जी अपी कर लिया। ठीक है। एक अलिफ के बराबर जो खींचकर पढ़े जाते हैं वो हुरूफ मद होते हैं। मद्दा है। जी। सॉरी, से हुरूफ मद ज्यादा होते हैं। वो मद है। जी। मद भी 3 है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। मद्दे मुत्तसिल यानी मुत्तसिल के मायने होते हैं मिला हुआ, यानी उसी कलमे में मिला हुआ यानी जुड़ा हुआ। ठीक है। मुनफसिल के मायने होते हैं फासले वाला, यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि हुरूफ मद के बाद अगर हमजा दूसरे कलमे में हो तो यहाँ पर फासले की बात आ गई ना, मुनफसिल यानी फासले वाला। ठीक है। मुत्तसिल यानी मिला हुआ, मुनफसिल यानी अलग, जुदा। समझ में आ रहा है? जी अपी 1 मिनट थोड़ा लिखना हेलो। है। जी अपी। जी एक बार और समझा दिए। मुत्तसिल यानी मिला हुआ, और मुनफसिल यानी जुदा, अलग, फासले वाला। हुरूफ हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। यहाँ पर हमें क्या रखना है ध्यान में? हमजा। क्या ध्यान में रखना है? हमजा। हमजा देखना है हमें कि मद आ रही है, मद के बाद अगर हमजा उसी कलमे में, कलमा कलमा कहते हैं पूरा एक वर्ड। ये जो जा लिखा है ना, जा, ये पूरा एक वर्ड है, एक कलमा है पूरा। ठीक है।
जा, जीम, अलिफ और हमजा, ये 3 हरूफ मिलकर एक कलमा बनाए, एक वर्ड बनाए। ठीक है, जी पहले आप लोग समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, और मैं जो दोहरा रही हूँ मैं उससे, जो पढ़ा रही हूँ उससे दोहराऊंगी, तो आप लोग लिख लेना बाद में। जी अपी। पहले समझ लीजिए कायदा, समझ में आ गए जी तो आप बाद में भी लिख सकती हैं खुद। जी। देखिए, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मध्य मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल होगा यानी मिला हुआ, जी। मुत्तसिल यानी मिला हुआ, और मुनफसिल यानी अलग। अलग, जुदा। जुदा, फासले जी वाला मद। ठीक है, जी अब इन दोनों मद में हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या है, वो हमजा है। जी। क्या ध्यान में रखना है हमें, हुरूफ हमजा। हरूफ हरूफ हमजा। हमजा। अगर हमजा उसी कलमे में आ रहा है, यानी उसी वर्ड में आ रहा है, दूसरे वर्ड में नहीं, उसी वर्ड में अगर हमजा आ रहा है तो क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा। मध्य और अगर मुत्तसिल। हमजा दूसरे कलमे में आ गया, यानी दूसरे वर्ड में चला गया हमजा, तो फिर वहां जी पर फासला होगा है ना बीच में, जी। फासले से कौन सी मद हुई, मुनफसिल। मुनफसिल। और अगर हमजा उसी कलमे में आ रहा है यानी मिला हुआ है, तो फिर जी हुई मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल। ठीक है, जी जी हमजा उसी कलमे में आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है तो बीच में क्या आ गया, फासला आ गया ना, जी। तो ये जी हो गई मद्दे मुनफसिल। मुत्तसिल। जी ठीक है, मुत्तसिल। जी जी। हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जो ऊपर वाली लाइन है वो मद्दे मुत्तसिल की है। जी जी ठीक है, जी ये वाली पूरी लाइन मद्दे मुत्तसिल की है। जी। पढ़िए इसे। जा आ, नीचे कहिए, फिर इसको रवानगी से पढ़ेंगे। जीम अलिफ जबर जा, जी। जीम अलिफ मीम जबर जा। अलीफ सबर जा। ऊपर मद, ऊपर मद। जा, जा। जा। हमजा जबर आ, हमजा हमजा जबर जबर आ। जबर आ। जा, जा। जा। जिम के बाद जो अलिफ आया, अलिफ पर ऊपर मद लगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलिफ को खींच रहे हैं। जी। जी। जा, जा। जा। ठीक है, अब देखिए जो इसमें हमजा आया है, हुरूफ हमजा, जी। हमजा को देखिए, हमजा क्या है, उसी कलमे हम। में जी। जी जा आ, ये जो जा आ है ये पूरा एक लेटर है ना, जी। जी सॉरी, पूरा एक वर्ड है, 3 जी। हरूफों से मिलकर पूरा एक कलमा हरूफ बनाए। बना। जी तो जो हमजा है वो उसी कलमे में आया। जी पीडीएफ क्या कहाँ चली गई। अभी स्क्रीनशॉट चला गया। जी, जा आ में जो हमजा आया है तो वो हमजा उसी कलमे में, यानी जो जुदा नहीं हुआ उससे उसी कलमे में आया है, तो क्या होगा, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, और मद्दे मध्यम। मुत्तसिल को हमें 2, ढाई और 4 अलिफ की मिकदार में खींचकर अदा करना है, दो खींचकर पढ़ना ढाई। है। 2, ढाई और 4 अलिफ की मिकदार में खींचकर पढ़ना है, मद्दे मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल। ठीक है, आगे वाला पढ़िए, आगे वाला कलमा, सीन या जेर सी, तीन या सी। सी। पर मद,
ऊपर मद सी सी हमजा ता जबर अत, हमजा हमजा ता जबर अत सी अत। सी अत इसमें भी सी जो हम कलमे में आया जो नहीं हुआ नहीं उसी कलमे में ही मिला हुआ है, यहाँ पर भी मध्य मुत्तसिल है। ठीक है, जी जी जी। आगे का पढ़िए। सीन वाव पेश सू, तीन वापस वापस ऊपर मद पर मत ऊपर मद पर मद सू, सू हमजा पेश ऊ, हमजा पेश हमजा हमजा पेश पेश ऊ सू, टू सू ठीक है, ये थे तीन कलमे मध्य मुत्तसिल के। मध्य मुस्त ये मध्य मुत्तसिल की लाइन थी। अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ये है मध्य मुनफसिल। अब इसमें क्या होगा, मध्य मुनफसिल में जो हमजा है वो देखिएगा फासले जी मिला हुआ है नहीं, यानी बीच में ही वो आ गया फासला, तो यहाँ पर मध्य मुनफसिल होगा, यानी हमजा जो है वो दूसरे कलमे में आएगा, दूसरे वर्ड में आएगा, उसी वर्ड में हमजा नहीं है और जी अलिफ की शक्ल में है। अपनी असल शक्ल में भी जी नहीं है, हमजा क्या है, अलिफ की शक्ल में अलिफ आया है। जी ठीक है, जी मध्य मुनफसिल। फा या जेर फी, पाया फी ऊपर मद पर मत पर मद फी, ऊपर फी मद हमजा फी मीम जबर अम, हमजा मीम जबर अम रा जेर री, रा हमजा मीम जबर अम नून अलिफ जबर ना, नून अलिफ जबर ना अमरी फी अमरीना। नून अलीफ फी जबर ना अमरीना अब देखिए फी अमरीना में जो या पर, अमरीना जिसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज माइक बंद करके पढ़ लीजिए। फी अमरीना में जो यहाँ पर मद है जी वो मध्य मुनफसिल है। उसके बाद जो हमजा है, यानी हमजा वो आया है दूसरे कलमे में, यानी जी दूसरे वर्ड में आया है हमजा, और किस में आया है, अलिफ की शक्ल में आया है, अपनी अलिफ असल शक्ल में भी नहीं है। जी तो यहाँ पर क्या होगा, मध्य मुनफसिल होगा। मध्य जी मुनफसिल को भी हम 2, 2.5 और 4 अलिफ की मकदार में खींच कर खींच कर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ठीक है, जी जी अब इन सभी मध्य मुनफसिल वाले सभी कलमों में क्या होगा, जो हमजा होगा वो दूसरे कलमे में आएगा, मिला हुआ नहीं होगा हमजा, बीच में क्या आ जाएगा, फासला आ जाएगा, यानी फासले वाला मद है ये मुनफसिल, यानी फासले वाला मद। जी ला उक़सिमु, ला उक्तिहु उक़सीमु ला उक़सिमु, ला ला उक्सिम उक़सीमु क़ालू इन्ना, आलू क़ालू इन्ना क़ालू इन्ना। क़ालू इन्ना ठीक है, समझ में आया मध्य मुत्तसिल और मुनफसिल। जी जी अपी अब बताइएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर जी हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो कौन सा मद होगा? चुप रहे ना मुत्तसिल मध्य मुत्तसिल मुत्तसिल, मुत्तसिल मुत्तसिल, मुत्तसिल मुंतसिल नहीं, मुंतसिल नहीं पढ़ेंगे, मुत्तसिल पढ़ेंगे। मुत्तसिल मुत्तसिल जी, और जी हमजा दूसरे कलमे में हो तो मुनफसिल मुनफसिल मुनफ मुनफसिल। मुनफसिल ठीक है, समझ में आया। जी जी अपी इसे हम कितना खींचकर पढ़ेंगे? 2, 2.5, 3 दो के ढाई मकदार चार में अलिफ दो की ढाई और मकदार 4 अलिफ खींच की कर मिकदार में पढ़ेंगे खींचकर पढ़ेंगे। जी एक अलिफ की मिकदार में जो खींचकर पढ़े जाते हैं वो हुरूफ मद्दा हैं, और मद्दा एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। मत देते हैं ठीक है, मद हुरूफ मद्दा भी 3 है और मद भी 3 है। तीन है जी मध्य
मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। जी देखिए लाजिम का कायदा भी देख लीजिए, टाइम तो हो गया वैसे। जी मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल समझ में आए सभी के? जी जी आ गया। जी अपी आ गया। अब देखिए सबसे लास्ट वाला मद्दे लाजिम जी देखो पहले। हाँ जी। पर हम ये तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, ऊपर वाली मदों से थोड़ा नाम चेंज है ना, मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल थोड़ा सेम सेम है, लेकिन जो मद्दे लाजिम है थोड़ा सा अलग है नाम। ठीक है, तो उसका जी कायदा भी अलग है। कायदा क्या जी। है कि हुरूफ मद के बाद वाले हुरूफ पर जज़म या तशदीद हो। जज़म में तशदीद जज़म हो तो किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी सी सी दाल दाल की को। शक्ल में ये जज़म है, जी। ये और छोटे से तशदीद डब्लू डब्लू, की शक्ल में ये डब्लू तशदीद की है। शक्ल में तजदीद है। क्या जी। क्या देखना है हमें कि हुरूफ मद के बाद, हरूफ में मद के बाद हुरूफ जज़म या मद के बाद तजदीद आए। वाले हुरूफ पर जज़म या तशदीद हो तो, जज़म या ला तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। लाजिम होगा। ठीक है। अब लाजिम के मायने क्या लिखेंगी? इसके मायने मत लिखिए, बस इसका कायदा लिख लीजिए। हुरूफ मद जज़म के या बाद वाले तजदीद हो। हुरूफ पर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसे पाँच सात, 5 या 7 अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इस 5 या मद को 7। खींच कर पढ़ा जाता है। जी अपी। 5 7, ये जब तक सांस ना टूटे तब तक हम इसे खींच सकते हैं। जैसे कि हम सूरह फातिहा में 5 पढ़ते हैं सबसे लास्ट में 7। जी वलद्दोलीन। जी आप हम की तो सांस टूट जाती है, लेकिन कारी हजरात जो होते हैं उनकी माशाल्लाह सांस की प्रैक्टिस होती है उन लोगों की, तो उन लोग वो लोग बहुत लंबा लंबा खींच कर पढ़ देते हैं। हम तो नहीं खींच सकते इतना, जो कारी हजरात होते हैं ना उनका बता रही हूँ मैं, जी है ना। इस मद जी का अपी कायदा 5 ये है 7 कि मकदार में खींच मद कर के पढ़ते हैं। बाद, जी, हुरूफ मद के बाद वाले हुरूफ पर जज़म या तशदीद हो तो वहाँ मद्दे लाजिम होगा। इसे हम 5 या 7 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। 5 7, ये जब तक सांस ना टूटे उतना हम खींच सकते हैं इसे, जी मद्दे लाजिम को। ठीक है, पढ़िए एक बार मेरे साथ। आल आना, आना आल आना, आना। अल आना। अल नहीं पढ़ेंगे, आ को खींचेंगे, हमजा, हमजा पर तशदीद, हमजा पर मद आइए ना, हमजा को लाम से मिलाते हुए खींचेंगे। आल आना, आल आना। हाजूका, हाजूका। हाजूका, हाजूका। हाजूका। वस्सोफाती, वस्सोफाती। 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 ठीक है, देखिए आल आना में क्या है, हुरूफ मद के बाद लाम पर क्या आ गई, जज़म आ गई, यहाँ पर मद लाजिम हो रहा है। हाजू, हाजू का में क्या हुआ, हुरूफ मद के बाद जीम पर तशदीद आ गई, यहाँ पर भी मद लाजिम हुआ है। जी बस सोफाती में हुरूफ मद जो है स्वाद है, स्वाद के बाद जी हुरूफ के बाद वाला जो हुरूफ है वो है फा, फा पर भी तशदीद आ गई, तो यहाँ पर भी मद लाजिम हो रहा है। तीनों ही जगह जी मद लाजिम है। ला। ठीक है। इसकी मिकदार हम जब तक सांस ना टूटे उतना खींच सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा ये मत खींची जाती है मद्दे लाजिम जी में, 5 7, या जब तक सांस ना टूटे उतना हम खींच सकते हैं। ठीक है, आज का आपका सबक मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कल का भी पढ़ लिया है। आज कल आप सब मस्जिद तशरीफ लाइए इंशाल्लाह, अपने साथ और माँ बहनों को भी लेकर आइएगा। ठीक है, जी इंशाल्लाह। आजकल नौजवान बच्चियों के लिए रखा गया है वो प्रोग्राम, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेकर आइए अपने साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए कल के लिए।
مسجد پیر صاحب میں 11:30 بجے سے پروگرام ہے خواتین کے لیے، اور تجوید کی اہمیت پر بھی بات کی جائے گی. آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا وہاں پر. جی مسجد پیر صاحب پیر گیٹ میں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اور آج ہم نے جو پڑھے 3 تختیاں پڑھی ہم نے، 17 تختی نمبر 17، 18 اور 19. امید ہے آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ گروپ پر میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں. جی اپی. کس کی سمجھ میں آیا اچھے سے؟ آ گئے اپی جی اچھے سمجھ؟ جی آ گیا ہے انشاءاللہ. جی اچھا ابھی الحمدللہ. 7 اسٹوڈینٹ ہیں، مجھے ملا کر 8 ہو رہے ہیں. 7 ہیں اسٹوڈینٹ، اور ابھی 10 تھے. جی اپی. 10 کون کون تھے؟ تو 2 لوگ اپنی لیو گروپ ہو پر گئے اس میں اٹینڈنس سے. لگا دوں گی. باقی سب آپ لوگ بھی اپنی اٹینڈنس گروپ پر دے دیجیے گا. میں گروپ میں آن لائن بھیج دوں گی اٹینڈنس سبھی کی. جی سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے کیا جی جنہوں نے ٹیسٹ؟ سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے جنہوں نے ٹیسٹ دیے ان کو؟ جی. ابھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب سرٹیفکیٹ لے کر چلے جائیں؟ جی سرٹیفکیٹ تو ہے نا، شاید پہلے بیان ہوں گے اس کے بعد ہی ملیں گے، تو آپ پہلے بیان میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد سرٹیفکیٹ لے کر گھر آ جائیں. ابھی تھوڑا کیا پاسبل نہیں ہو رہا نا آنا. وہ ہسبینڈ جاتے ہیں آفس، تو ان کا کہنا ہے کہ بس تھوڑا ہم تھوڑا اتنی لیٹ دیر بھی آ رک سکتے سکتی ہیں، ہے نا، 5-10 منٹ. 12 بجے تک آ جائیں، 12:30 تک آ جائیں. کب تک ختم؟ 12:30 تک. جی وہ زور تک ہی تب ہوگا. بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور میں مطلب زور تک ختم ہوا 2-2:30 بجے تک؟ جی ابھی 1:15 تک کا کہہ رہی تھی طلعت صاحبہ کہ 1:15 تک ہو جائے گا، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر. جی جی ٹھیک ہے. آپ لوگ آئیے گا، اور آج جی کا اپی جو ہم نے انشاءاللہ. پڑھا تو جی آپ گروپ پہ پوچھ لیجیے. جی جی ہمارا ہوم ورک چیک ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. کی ربنا اٹینڈنس تقبل ہوگی. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل تقبل نہ إنك أنت السميع العليم انك انت السميع منا السمیع العلیم. وتب علينا وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم. وتب انک علينا انت التواب الرحیم. سبحان ربك سبحان ربک رب العزة رب رب العزت عما يصفون عما عما يصفون یصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب رب العالمين. العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم